مسترد کیے گئے. آرڈر میرے پاس آیا تو دیکھا کہ جی میرے نام پہ پشاور کے 6 گھروں کے پانی کے کنیکشن ہیں اور ان پانی کے کنیکشنوں کے بل اکتوبر ماہ کے میں نے ادا نہیں کیے تو لہذا میں ڈسکوالیفائی ہوا. اب پوری قوم کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا کنیکشن کسی بھی شہر میں نہیں لیا ہے. پانی کے کنیکشن کے لیے فارم دینا ہوتا ہے, شناختی کارڈ دینا ہوتا ہے, پھر تسلسل سے آپ بل بھرتے جاتے ہیں. آل آف اے سڈن اکتوبر میں پشاور میں 6 گھر پتہ چلا ابتدائی کہ انہوں نے شیر افضل نام کے جتنے یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ افسر کو بھیج دیے کہ جی یہ وہ شیر افضل ہے اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ افسر نے ڈال دیے. پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہیں کہ جی آپ پہ پرچے ہیں, فلاں پہ پرچے ہیں. کمبختو, یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناخت کلو اور منوں کی حساب سے دے رہے ہیں اور آپ نے خود پھر اسی کو بینچ مارک بنا دیا. پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہ لینے کی, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے, یہ اس بلڈنگ کی, اس عدالت کی ذمہ داری ہے. آئین نے ان کو یہ فرائض دیے ہیں. آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, ڈسپلن کرنا ہے, ناانصافی, ظلم اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے, اور یہ تمام ہائی کورٹ اس کی ذمہ دار ہیں. آرٹیکل 199 یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو دیتا ہے. تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رقص ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انصاف کے لیے انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پہ عمل درآمد ہوگا, یا اب انصاف نہ انصاف ہے نہ قانون ہے, طوائف الملوکی ہے, اور اتنی بڑی بڑی عدالتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں, اور ہم چیخ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا, ان کا خیال تھا, اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے, اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو, جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا, کیوں نہیں, اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم 2 لوگ بناتے ہیں, یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے, اور عوام کے ساتھ, عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا, اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ قدغن ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کلیئر کٹ انصاف مل رہا ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ سٹانس لے کے کھڑی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاف تب ہو, یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں. پشاور ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. اسی کی تنخواہیں میں لیتے ہیں, اسی لیے یہ مسند نشین ہے. کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے.
पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तवाइफुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रही थी। क्यों करे आईजी की जरूरत होती है बिला वजह, उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 मिनट बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफा शारियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकामात है आपके? जेल से बाहर निकलते हैं फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के आईजी, केपी के आईजी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आईजी को कठेरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर ज़हन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल? आपने इस पे बड़ी सख्त तनकीद की कि अदालतों में ये जुल्म हो रहा है, हमारे उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज को भर रहा था, तो उसकी भी आप तनकीद करते हैं और उसकी भी मुखालिफत? जिस दौर में भी जिस दौर में बैसियत वकील में ये मेरा ईमान है, और हर दौर में हम खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस वक्त भी कानून की हुक्मरानी की कमजोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज भर भर के ला रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफाल को सजाएं भी देता है, जजा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। कोई मुझे मेरी ठाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है पीपीपी या पीएमएलएन और पीटीआई में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आईन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके मुझे उम्मीदवार बना दें। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने ये गलत, अच्छा जी बेल आपको दे देते, वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पे। शेर अब्दुल महमूद साहब, आपने कहा है कि आपको खदशा है कि इलेक्शन तखीर का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस बुनियाद पे आपको खदशा है कि इलेक्शन तखीर का शिकार? बुनियाद तो अवाम है, अवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा अवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को अवाम को वोट डालने तब देगी जब पीटीआई नहीं होगी, और पीटीआई जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं, आईन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे हकूक हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 के आईन के बुनियादी हकूक का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है, तब तक जो है पीटीआई को कोई
बाहर नहीं रख सकता है। बल्ले का निशान ना मिला। मदर साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं, इसी अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि इंतखाबात में ताखीर की कोई जिक्र ना करे, अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करे। तो ये आप इन अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी बदतरीन पामाली देखी है। ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पामाल हुआ, क्या हुआ? न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवातें सुनाई गई, गालियां दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जुर्रत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नाम लेके ये जनाब अर्जा सराइयां करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाज या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस वक्त बंदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करते तवीन अदालत में, ये सिलसिला थम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी। अदलिया की बेतवकीरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्थर की लकीर है, कौम गवा रहे हैं, हम इस पत्थर पे बनाई गई लकीर को 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पत्थर की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न साबित। बरबत साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ जो रहनुमा हैं, आरओज़ ने बड़ी शफकत भी की है उनके साथ। बाबर अवान हैं, लतीफ़ खोसा के कागजात मंजूर हुए, इसके अलावा उमर अयूब हैं, तो उनके लिए कोई तारीफ़ी कलमात कहेंगे? जी, जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात की नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है। वो जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अवान, लतीफ़ कोसा या बहुत सारे ये बड़े चोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना। मेरा जवाब उन्होंने दिया है। और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उस आरओ को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक है, कोई जवाब बनेगा उसके ज़हन में ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है उस महकमे का भी और आरओ की मिली भगत के साथ है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। उमर अयूब साहब वकील नहीं है। वो मैंने उस बड़े माइक पे लगाया हुआ है, जैसे आप खींच रही है सारा जी। इस वक्त आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत टॉक करके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं। मेरे जहाँ से मंजूर होने थे वहाँ से रिजेक्ट हो। अपने ट्रिब्यूनल से क्या आपको सर उम्मीद है? उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है। क्या यकीन है सर? कि ये ऑर्डर जो है ये ऑर्डर सेटिस्फाइड होंगे। खान साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? 20 दिन में वापस आएगा, बाहर आएगा। कैसे कह सकते हैं सर? वकील हूँ उनका और इन केसेस में हूँ। अच्छा, हाँ, यानी कि ये बात आप यकीन से कह रहे हैं कि 20 दिन में इमरान खान वापस आएगा? मैंने कभी ऐसी बात पहले की ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब को क्या फ्यूचर देख रहे हैं? नवाज शरीफ को जो है अब कोई बच्ची पकड़ लेगा। अपने गुनाहों की माफी का माफी करेगा।